बिजनेस में अपनापन तो हर कोई दिखाते हैं, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। Hey, welcome back. I am Jagvantu Behra. I am a researcher of finance and management and founder of Utkal Education World. Today I would like to explain business environment. What is the meaning of business environment? Why you are studying? Why are you studying business environment? Today I would like to explain business environment. Business environment is combination of the two words business and environment. What is the meaning of business and what is the meaning of environment? Business means exchange of the goods and services from supplier to customer, that is the business. Environment, where you started a business, that is the environment. और बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? जो प्लेस में हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का सिचुएशन को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. According to the Davis, business is the estimated of two words: estimated effort of the people and production and distribution of goods and services, that is called business. Thus the business environment encompasses to those factors, internal and external, that affect to the common company operation, that is called business environment. इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखिए, पहले जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बारे में आपको मालूम हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये समझिए, जो प्लेस में बिजनेस रन हुआ है उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. मतलब बिजनेस का जो चारों तरफ जो चीजें हैं, जो सिनारियो है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला नेचर होता है डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. डिपेंडिंग ऑन ईच अदर मतलब सप्लायर डिपेंड ऑन कस्टमर, कस्टमर डिपेंड ऑन सप्लायर, एंड सप्लायर कस्टमर डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन और बिजनेस एनवायरनमेंट. डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सप्लायर कस्टमर दो मैच नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं हो सकता है. सो सेकेंड थिंग्स क्या होता है? सेकेंड थिंग्स ये होता है मोबिलिटी. Mobility, it is very very important to related of the business environment, nature of business environment. Then third things, multifarious nature. Business have the multifarious nature and business environment have the multifarious nature, that is to handle by the business environment. And environment, it is the very very important concept to the multifarious nature. Then उसके बाद आता है ability to understand changing scenario. आपके पास बुद्धिमत्ता होना चाहिए, ability to understand how to the change of the scenario of business environment. That is the very very good talent of every businessman, how to handle the situation, that is the very very important. Then last one होता है knowledge of danger accidental change. Knowledge of danger by accidental change, it is the very very important to related of the business environment. आपके पास knowledge होना चाहिए how to handle the danger situation, how to handle the accidental change, that is the nature of business environment. और उसके बाद आता है importance of the business environment. What are the importance of business environment? business environment के importance क्या है? और बिजनेस इंपॉर्टेंस जो पहला चीज होता है हेल्पिंग इन द नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. आपको पहले इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए. और सेकंड में जो आता है हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, आपके पहला चीज होता है हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए. और उसके बाद आता है क्या? एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग. जो आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग को इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएशन करिए, हाउ टू प्रॉपर प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग. और उसके बाद आता है हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. आपके पास जो रिसोर्सेस है कैसे आप प्रॉपर यूटिलाइज करें उसके बारे में सोचिए. आपका जो ढक्कन है उसको खोल देंगे तो आप बिजनेस कर सकते हैं. नहीं, आप बिजनेस और एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं. सो इसके लिए पहले नॉलेज और स्किल डेवलप करना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर. सो हेल्पफुल द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. उसके बाद आता है डेवलप कंपटीशन एबिलिटी.
कंपटीशन एबिलिटी, आपके पास क्या होना चाहिए, compete करना चाहिए, और कंपटीशन एबिलिटी होना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको रुकना है तो, आपको टिके रहना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होगा और एबिलिटी आपके पास होना जरूरी है। सो उसके बाद आता है जनरल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, एवरीथिंग्स हैव द एलिमेंट्स, विदाउट एलिमेंट्स that is not a very good things. So business environment have the elements. So दो एलिमेंट्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में चीज आता है कल्चर, उसके बाद आता है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आता है क्या, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। आपके पास टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। और उसके बाद आता है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस। देखिए, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट में टिके नहीं रह सकते। सो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी हायर करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। आपके पास क्या होना चाहिए, कंपनी इमेज होना चाहिए एंड ब्रांड इक्विटी होना चाहिए। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास नहीं है तो आप उसको तैयार करिए, कैसे ब्रांड इक्विटी और कंपनी इमेज तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला चीज होता है क्या, माइक्रो एनवायरनमेंट, और उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या है, पहला होता है सप्लायर, सेकंड में होते हैं कस्टमर, थर्ड में होता है मार्केट इंटरमीडिएटरीज, और उसके बाद आता है कंपटीशन, उसके बाद आता है पब्लिक, दैट इज द माइक्रो एनवायरनमेंट। और उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। देखिए, वीडियो जरा स्पीड हो जाता है, उसके बाद हम लोग माइक्रो और मैक्रो में डिटेल में समझाएंगे। आज आप इतना ही समझिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो माइक्रो मैक्रो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। माइक्रो के अंदर आता है सप्लायर, उसके बाद आता है क्या, कस्टमर, उसके बाद मार्केट इंटरमीडिएटरीज, उसके बाद मार्केट कंपटीशन, उसके बाद आता है पब्लिक। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। सारे चीज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। आज इस वीडियो के ऊपर जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।